Good morning, everyone. We are here for the scientific session on update of cancers. First of all, we would like to invite our President, Dr. Jayashree Mal, on the dais, our Secretary, Dr. Pratibha Gupta ma'am. We'll start our session with the doctor's prayer. So I'll ask everyone to kindly please stand up on their place. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् न त्वहं कामे राज्यं न त्वहं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् न पुनर्भवम् कामे दुःखताप्तानां कामे दुःखताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशः परिणाम आदिनाशः. Thank you. Today's speaker for this morning CME, there are two speakers, Dr. A.K. Chaturvedi and Dr. Diksha Chaturvedi. Everybody knows him, Dr. A.K. Chaturvedi. He has been serving Gorakhpur since long time. Earlier he was at cancer hospital and now he is doing lots of work. और सबसे अच्छी बात है कि दीक्षा भी जुड़ गई है उसमें. इसने भी MD रेडियोथेरेपी में किया और वो भी अपने पापा के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है. और मैडम डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी, ये तो मतलब हैट्स ऑफ टू हर. शी इज डूइंग लॉट्स ऑफ जॉब फॉर कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम. इनका देखते रहती हूँ, पोस्ट करते रहती हैं. शी इज़ वेरी एक्टिव एंड एक्टिवली डूइंग एवरीथिंग. नाउ विदाउट मेकिंग एनी डिले, आई इनवाइट डॉक्टर A.K. Chaturvedi sir and Dr. Diksha for their talk. Yeah, very good morning. Thank you GP Association for inviting us. Since long it was we were discussing that there should be something regarding cancer because GP Association, only I remember once Dr. C.M. Sinha had given a speech. Thereafter and before that time nobody was giving any speech or anything. So today also I am not going to say much more about that. Dr. Diksha has prepared the things. I have minimized the things so that it should come fit in the time, and the bare necessary things we are going to inform you, and we are not going in detail what is cancer and how it looks like. You all, everybody knows, and what are the latest updates which a doctor should know. She will be summarizing all the things. So I invite Dr. Diksha for the talk. Thank you for introducing me, and thank you GP Association for organizing such a meet and inviting me, a newbie in this field. I'll try my best so as to explain the simplest form of malignancies, the whole of the book, the whole of the PG in one slide, in one seminar. Source of this presentation is from our textbooks, the Devita and the Perez, and some research papers. So we all know that cancer is an uncontrolled aimless cell proliferation that takes place, which can be a benign tumor and a malignant tumor. Benign like lipoma, fibroadenoma, malignant ones like sarcoma and carcinoma. Sarcomas are mesenchymal origin tumors and carcinomas are epithelial cell origin tumors. Then there are hematological malignancies and solid tumors. Hematological, that means leukemia, lymphomas, multiple myeloma. Solid ones like breast tumor, prostate, colorectal, lung, and so on. So commonly seen these signs, the WHO guideline has given certain warning signs that needs to give us an alert signal, which is like a sore which is not healing, thickened lump in the breast or anywhere else, कहीं भी गांठ दिख रही है उसके लिए. Sudden change in the wart, change in color, change in shape, size of a wart or a mole, a nagging cough, hoarseness in voice, which is a hot potato voice. Patient will be presenting like, हाँ बताइए कैसा है. So there is a change in voice, that is a hallmark for the laryngeal malignancy most often, or an oral cavity growth which is reaching up to the larynx. Indigestion, difficulty in swallowing, patient खाना नहीं निगल पा रहा है initially for liquids, then gradually proceeding into solid, and sometimes both. Change in bowel bladder habits, blood mixed stools or in urine, unusual bleeding or discharge from any opening, unexplained fever with night sweats. This is a real one of our patients this is the later stages of the disease where the tongue has got fixed. This is the breast lump where we are seeing the changes. There is erythema present on the skin and there is nipple retraction seen.
So, when a patient is presenting in any OPD, one needs to go for a basic workup, which is history and physical examination. Then there are blood investigations which we need to have, like complete blood count, liver function, kidney function test. Viral markers में HIV, HBS, HCV, why? Not only does it help us detect कि there is a viral load in the patient, but also these are the risk factor for cholangiocarcinomas and other malignancies. So we are alert on this part as well. PT-INR, and because when you are taking a biopsy, you should be aware that there's no blood dyscrasia happening. Apart from that, radiological workup, like if it's chest X-ray, PA view, if it's a lung malignancy, then for metastatic workup, so as to find the metastatic foci in the lungs, ultrasound whole abdomen just to see the well-being of the abdominal content, or if there is any metastatic lesion. CT scan thorax, abdomen. CT scan is for the nodal load. If we are suspecting, we are finding nodes and bone involvement. MRI is for the seeing the extent of the soft tissue involvement taking place. So ये जब सर्जन के पर्सपेक्टिव से रहता है तो उसको पता चलता है कि हाँ मैं इसको एरिया रिजेक्ट कर सकता हूँ या नहीं. PET CT whole body scan, we'll discuss about it a bit later. Also in an investigation like endoscopy, FOL, which is fiber optic laryngoscopy, direct laryngoscopy, it is done in cases of you're having laryngeal growth, or upper GI endoscopy, esophageal malignancies के लिए, colonoscopy, MRCP for colon, and in pancreatic GI malignancies. Other investigations that needs to be done up, these are the markers which are done pre. These markers are done pre and post as well, and during the treatment also, and in follow-up also. Like CEA is there in GI malignancies, CA125 in ovarian malignancies, 19.9 pancreatic malignancies, GI malignancies. They are not specific, but they are indicative. LDH is for testicular malignancies, ovarian. AFP in hepatocellular carcinoma, testicular malignancy, AFP की value more than 200 nanogram per ml होता है, so that is a diagnostic one, non-invasive diagnostic marker for diagnosing hepatocellular carcinoma. Beta HCG, it's known for hydatidiform mole, testicular malignancies, ovarian. PSA is important in prostate, in BPH. In head and neck malignancies, there is a dental workup which is done in these cases. We'll go on that later. Why is this Roche formula put? Because it is in prostate malignancies that PSA values are important. This tells about the extent of the disease, so we plan accordingly for the treatment of the patient. There is risk stratification where this PSA value we can see PSA value which is shown. So it has an importance in risk stratification of a malignancy. Then this is testicular malignancy, where in TNM staging we can see there is a role of serum markers. We can see okay, sorry. So there is serum markers are present. So that's why these markers need to be done prior to begin any treatment, basically. So in dental extraction, we were talking that there needs to be extracted, there should be scaling done, that should be done prior to the radiation, because once the radiation starts, we cannot extract the tooth because there is a risk of bleeding and there is a risk of osteoradionecrosis that can take place. So basic workup में main है आपका CT and MRI, they are suggestive of a malignancy, they are not gold standard to say yes it is malignant. So we will go for a biopsy. No, biopsy does not spread or upstage the disease. We see an asterisk there. So asterisk says कि upstage is, the upstage happens in ovarian, testicular, renal malignancy. That's why it is prohibited to undergo FNAC or a biopsy in these cases. Then what can we do? How to prove? So we see in ovarian I have put 2 asterisks. So it is when there is ascites has already set in, gross ascites, that means it has already breached and it has reached the peritoneal lining. So now when we will extract, we are not upstaging, it is already upstaged. So then we can do. In testicular it is the same, that's why orchidectomy happens. In renal cell malignancy with the capsule intact they operate it. सस्पेक्टेड ब्रेस्ट लम है तो उसमें ट्रू कट बायोप्सी एडवाइस की जाती है. FNAC इसलिए नहीं क्योंकि कई बार होता है कि वी आर सेंडिंग द सैम्पल तो वो रिपीट भेज देते हैं, तो पेशेंट गेट्स अनॉयड कि मैंने 5 दिन वेट किया एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी रिपीट. सो इट इज़ एडवाइज टू अंडरगो ट्रू कट बायोप्सी
जब biopsy is being done, that time IHC, which is immunohistochemistry of these cells should be done, which is ER/PR and HER2/neu. These are the receptors based on which the targeted therapy is given. Estrogen receptor, progesterone receptor, and HER2/neu. That has a risk. That has a role in prognosis of the patient as well. Reason क्यों पहले कराना चाहिए? Because that hormone status gets altered in due course of treatment. सो पहले अगर नेगेटिव था, बीच में पॉजिटिव आ जाएगा तो आप पॉजिटिव समझेंगे, इसलिए हमें वो नहीं जानना जो इन ड्यू कोर्स में आ रहा है. हमें पहले पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट कि ER/PR HER2/neu स्टेटस इन अ ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी क्या होना चाहिए. एंड ऑल्सो व्हेन बायोप्सी इज डन, द साइट एंड लेटरलिटी शुड बी मेंशन. कौन सी जगह से एक्सट्रैक्ट किया है, लेफ्ट था कि राइट था. सो लाइक इन प्रोस्टेट देयर इज 12 कोर ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी डन. सो दे आर पहले 4 कोर बायोप्सी ले लेते थे, अब 12 लेते हैं बिकॉज प्रोस्टेट में माइक्रोस्कोपिक भी रहता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है, मिस नहीं होता है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट PET-CT. PET-CT, इज इट रिक्वायर्ड इन ऑल कैंसर केसेस? सो आंसर इज नो. देन वेयर? सो रोल ऑफ PET-CT comes here. We see an axial section of the CT image. So we are seeing this lung has having some pathology in this field, but we don't know it is malignant or not. So with the help of PET-CT getting fused in this CT image, we see a highlighted image. We can appreciate this FDG uptake taking place. So we know this is the part where the tumor is present, and this is other pathology that is along with the malignancy. In lymphoma, the PET-CT is having a Duval's criteria where there is scoring done in staging process of lymphoma cases. When they are taking mediastinum and lever as the main to compare with. Like here we see there's this CT image and there's this PET-CT image. So if is it appreciable here? So the arrow is showing this, there's a lymph node present, but this lymph node, if compared to lever, it is having more uptake, it is more darker, if we can say. And with compared to mediastinum, it is again mediastinum se bhi it is darker, so it is score 4. We have seen here uptake moderately higher than lever and visually above the adjacent background activity, so it is a positive one. Then comes this another image where we see there's this arrow, we can see there's a slight darker lymph node positivity is seen. Now when on PET-CT, it is very minimally visible, it is compared to lever and mediastinum. Actually the image must not be clearly showing, so it is bit in accordance with the mediastinum, but the uptake is more than equal to lever, so the score is 3. So the score 3 is here, uptake is more than the mediastinum but less than equal to lever. This is another image, axial section of the thoracic cavity. Here we find there is a node. So here there is a node. Now this is the PET-CT fusion. So this is the uptake which is taking place. So and there is lever. This is the lever with which we have to compare as well. So the uptake is more than that of lever. We see it is more darker, it is taking uptake, and mediastinal structures से भी और the rest background activity है उससे भी ज़्यादा enhance हो रहा है. So ये negative है according to the Duval's criteria जो PET-CT के लिए रहता है. So importance ये this thing is to be highlighted that PET-CT is done in specific cases like in lung cancers, in lymphoma. Lung cancer में according to Kauf et al, it has upstaged, जो PET-CT है, it has upstaged the level of the patient from a curative to palliative बन गया है, and downstage certain patients from palliative to curative intent. So these are main malignancies where PET-CT is mandatory to be done. Otherwise आप कर सकते हैं कहीं भी. Cervix में it is not advised. In head and neck cases it is not advised कि पहला investigation PET-CT हो, but ovarian है उसमें follow up में कई जगह कराते हैं. But these 4-5 malignancies are the must have in these cases, like in lung, in lymphoma, in club. Club is not the party. It is cervical lymphadenopathy of unknown primary. Malignant mesothelioma, because
club is the thing you are finding out the primary. तो उसके लिए apart from pan investigations, endoscopy आप करा के check करो, colonoscopy, fiber optic laryngoscopy to find out the primary. In case you are not getting, we go for PET CT to find out where else it can be. Why it is done? PET CT for diagnosis, staging, response evaluation, restaging के लिए, suspected recurrence, follow-up surveillance में. So the treatment options available at hand, there is surgery, there is radiation, there is chemotherapy. Surgery can be radical, palliation, radiation can be either cobalt or photon, which is linear accelerator, or proton or gamma knife and so on. Chemotherapy, it can be neoadjuvant chemotherapy, concurrent, adjuvant, palliative. Also there is bone marrow transplantation, that is in leukemia cases. So surgery, all these sites, those that are not mentioned, they all have a role in surgery. सर्जरी आपके अर्ली स्टेजेस में रहती है. सर्जरीज कैन बी इन लेटर स्टेजेस, लाइक दिस इज़ अ T3 डिजीज़, T4A डिजीज़. सर्जन इज़ एबल टू ऑपरेट, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? द रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है ही इज़ हैविंग एमिंग फॉर अ क्योर और अ कंप्लीट रेमिशन, सो R0 रिजेक्शन. R1 इज़ द माइक्रोस्कोपिक रेसिडुअल डिजीज़, R2 इज़ मैक्रोस्कोपिक रेसिडुअल ट्यूमर. सो सर्जरी में व्हाट थिंग्स आर, सर्जरी की डिटेल्स में तो हम नहीं जा रहे हैं, because that is known to the surgeon, so I will not be going in that. So surgical clips, the importance of the surgical clips which is placed in the abdominal content operated. So abdominal or head and neck surgery, so these clips are actually a bonus for our treatment point of view. When they are planned for radiation, so these areas are made sure to be covered in the radiation field, so that the tumor is not missed and we are able to provide proper treatment. So pre-op imaging इसलिए हमें is needed. It is useful in planning radiation areas, and always whenever anything is operated, taken out from the body, send it for histopathology. In breast, patients they are like नहीं हमें breast बचाना है अपना, so they don't operate. lumpectomy करा लिए या थोड़ा सा एक्सरसाइज करा के भेज दिए. एक्सरसाइज जब प्रूव कर रहे हैं तब है, बट अगर आप ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज करा रहे हैं, सो मैंडेटरी रहता है उसके बाद रेडिएशन कराना, इवन इफ इट इज़ ऑफ अर्ली स्टेज. लेकिन वो चीज़ नहीं है इफ़ पेशेंट अंडरगोज मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी. अगर MRM कराते हैं तो फिर उसमें ज़रूरी नहीं है रेडिएशन, बट इन केस ऑफ BCS यू हैव टू हैव अ एडजुवेंट रेडिएशन आफ्टर द सर्जरी. इन लैरिंजियल कैंसर्स पहले येस, लैरिंजियल मैलिग्नेंसीज में देवर कि टोटल लैरिंजेक्टमी कर दी जाए, बट नाउअडेज वॉइस प्रिजर्वेशन के ऊपर बात चल रही है. सो दीज लैरिंजेक्टमीज, टोटल लैरिंजेक्टमीज विद और विदाउट नेक डिसेक्शन, दिस लाइन इज एक्चुअली कोटेड फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक परेज. इट इज़ ऑपरेशन ऑफ चॉइस फॉर एडवांस लीजन्स एंड as a salvage procedures for radiation failures in lesions that are not suitable for conservative surgeries. ऑल्सो जो आजकल लेज़र से अगर अर्ली स्टेज का होता है लैरिंग्स का, तो पेशेंट क्या कराते हैं, वो लेज़र एब्लेशन करा लेते हैं ऑफ दी वोकल कॉर्ड में जो डिजीज़ है. तो देयर वाज अ पेशेंट हु अंडरवेंट ट्वाइस एंड थ्राइस एंड फाइनली ही हैड टू अंडरगो रेडिएशन विद द कन्वेंशनल मेथड इंस्टेड ऑफ कि थोड़ा सा हाईफाई में. वो हाईफाई में मिस हो गया उसका, या उसकी GC इतनी ऐसी थी कि रिकरेंस कर गया. सो बिकॉज दैट साइट इज़ नॉट सीन एक्चुअली, वोकल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई नहीं, तो वहाँ रिकरेंस क्यों हुआ, क्या हुआ, वो अलग है. ही अंडरवेंट एटलीस्ट 3 times ही हैड अंडरवेंट दैट लेज़र समवेयर आउटसाइड. सो सर्जरी, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम जनरल सर्जरी? So there is more aggressive approach to these patients. Lymph nodes are being addressed which is not normally addressed in a case. Role of frozen section happens because वहीं कहीं आजकल OT में भेज देते हैं कि भाई frozen section कराया, malignancy तो हम आगे का काटें, margins clear हैं या नहीं, वो चीज़ वहीं के वहीं clear करते हैं. So for example the gynecological malignancies, in surgery, in endometrial malignancy, surgery is the mainstay treatment. This line is also quoted from my textbook. It consists of simple hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, so inspection of the pelvic and abdominal cavities and biopsy of any suspicious extrauterine lesions accompanied by peritoneal washings. ये complete surgery का एक example आपको दे रहे हैं. Surgical assessment of the lymph nodes, even pelvic paraortic lymphadenectomy की जाती है. So there are guidelines actually which says there is adequate number of lymph nodes that need to be addressed in an onco surgery. अगर head and neck की है, they help in prognosis actually. And head and neck में it is 18 number of lymph nodes, breast में
minimum 10, not less than 10, minimum 10, maximum 40. All the three sides will be addressed. Gastric में 16, endometrial में 22, colon में 12. These are the ideal number of lymph nodes that needs to be in a histopath report when it is coming. नहीं हुआ है तो वो तो हमको पता चल जाएगा, so we'll make sure to add in the field of radiation. लेबलिंग इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे हमने नोड निकाला स्टेशन 2 से, स्टेशन 3 से या स्टेशन 4 से, तो हम वो लेबल उस कंटेनर, सेपरेट कंटेनर्स में उसको लेबल करके सेंड कर देते हैं. सो दैट जब उसमें पॉजिटिव देता है, फॉर एग्जांपल लेवल 3 में लिम्फ नोड पॉजिटिव आ गए, तो हमें पता है कि लेवल 3 का इसको स्किप करके नहीं आएगा, या 2 में है तो, और लैरिंग्स का केस है फॉर एग्जांपल एडवांस स्टेज में, तब हमने ऑपरेट किया, तो हमें पता है कि उस एरिया को हमको बोनस डोज हमें देनी रहेगी, बोलस. देयर इज़ रोल ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, बट इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं रहता कि सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करा के एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन किया तो उसमें ओवरऑल सर्वाइवल में या डिजीज़ फ्री सर्वाइवल में कोई रोल इतना मिला नहीं है. लिम्फेडिमा इन अ केस ऑफ पोस्ट MRM, these are the stages they have given, grades actually, image and the real life pictures which happens post MRM. That's why patient को हम लोग एडवाइस करते हैं कि अपना हाथ मूवमेंट करते रहें during post treatment and all throughout your life after surgery. So is ideal surgery done routinely? नहीं. Why? क्योंकि incidental finding रहती हैं. They are operated for cholelithiasis, histopath comes out to be malignant. Sometimes histopath report is also not available. सीधे metastatic lesion लेके patient presents histily, then we come to know that they had operated themselves for cholelithiasis. So resurgery के लिए एडवाइस करते हैं in case of radical cholecystectomy. पेशेंट इफ इट कम्स आउट टू बी मैलिग्नेंट, तो हमने एडवाइस किया रीसर्जरी पेशेंट कराता नहीं है. सो इट्स बेटर कि हमें अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो लिम्फ नोड डिसेक्शन भी उसी के साथ अलॉन्ग साइड कर दें. Coming to another mode of treatment, which is chemotherapy, which can be a NACT, which is neoadjuvant chemotherapy. It is mostly done to downsize the disease for easy operability. There is adjuvant ACT, which is post radical approach to the disease. There's palliative, which is to palliate the symptoms. It is metronomic. Metronomic means low dose therapy given up to until disease progression or adverse side effects. This is first, second, third, fourth line of chemotherapy. Also, there are two other things. These, like in ovarian malignancy, there can be second line chemotherapy, third line, fourth line chemotherapy that is given. Concurrent and weekly. Concurrent होता है, weekly दिया जाता है. That is given along with radiation to enhance the tumor cell killing via radiation. ये radiation वाले part में अभी हम cover करेंगे. Then there is something called immunotherapy and targeted therapy. So we can see these are the target sites in the tumor cells. PD1, if programmed death 1 cell, there is programmed death PDL1 भी है, ligand 1 वो भी है. So these are actually nivolumab, pembrolizumab, they work on it. Ipilimumab, so ये year of approval ये डेविटा से लिया हुआ है. इसी में टारगेटेड थेरेपी में आपको ER/PR और HER2/neu के बारे में बता दे रहे हैं. HER2/neu जो रिसेप्टर रहता है, सो HER2/neu इज़ ERB एक्चुअली. इफ़ दैट इज़ पॉजिटिव इन अ ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी तो हम उसमें ट्रास्टुज़ुमैब ऐड करते हैं. इवन देयर आर अदर साइट्स वेयर HER2/neu इज़ पॉजिटिव, तो हम उसमें भी इसको ऐड करते हैं. सो इट गिव्स ओवरऑल सर्वाइवल में थोड़ा बेनिफिट रहता है. ER में आपका पोस्ट ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी जो ट्रीटमेंट ले लिया तो हम टैमोक्सिफेन लेट्रोजोल थेरेपी पेशेंट को देते हैं. अगर पेशेंट का ट्रिपल नेगेटिव होता है, विच इज़ ER/PR एंड HER2/neu ट्रिपल नेगेटिव है, तो वो दैट इज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस फॉर द पेशेंट. बट ये थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग रहता है. पेशेंट कई बार वो भी सर्वाइव कर जाते हैं, बट इन थ्योरी पॉइंट इट इज़ हैविंग अ पुअर प्रोग्नोसिस कंपेयर टू अदर कॉम्बिनेशंस. रेडिएशन ये टाइप्स दे रखे हैं. एक कन्वेंशन है द कोबाल्ट वन, देन देयर इज 3D CRT, IGRT, IMRT, VMAT, 4D RT, stereotactic ablative body radiotherapy, proton therapy, gamma knife. Too much information. रेडियोथेरेपी रेडिकल अप्रोच रहती है, एडजुवेंट है, पैलिएटिव है. रेडिकल मेन हमारा क्यूरेटिव इंटेंट है. एडजुवेंट एड ऑन हम कर रहे हैं. जैसे ब्रेस्ट मेलिग्नेंसीज में हम पहले क्या करते हैं, पेशेंट को दिया कीमोथेरेपी, डाउनसाइज हुआ, आपका ऑपरेट हुआ एंड देन रेडिएशन दिया, सो वो एडजुवेंट में चला गया. पैलिएटिव, पेशेंट इज़ हैविंग बोन पेन फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी हम रेडिएशन देते हैं सो दैट द डिजीज़ डज नॉट प्रोग्रेस. देयर इज़ two form of radiation. There's teletherapy and then there is brachytherapy and then there is intraoperative radiotherapy. So teletherapy हमारा ये सारे आ जाएंगे, कोबाल्ट, 3D CRT, IGRT, IMRT, VMAT, ये सब.
और ब्रेकीथेरेपी वो जो इनसाइड द बॉडी कैविटी हम इंसर्ट करके रेडिएशन दे रहे हैं, विच इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द बॉडी. इंट्रॉप बोन मेलिग्नेंसी है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोसार्कोमा है, ऑपरेट किया, बोन निकाला, बोन को ले गए, फुल डोज दे दिए जो बोन की डोज देनी होती है, एंड वापस इम्प्लांट कर दिए उसे. सो दैट इज़ इंट्राऑप रेडिएशन. वाई इट इज़ डन सो? जब हमारे पास टेलीथेरेपी तो हम इंट्राऑप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा बॉडी है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, मसल्स हैं, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, अगर हम उसको फुल डोज देंगे वो भी फाइब्रोज हो जाएंगे, वहाँ ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई सब डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. लेकिन वो भी करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हर पेशेंट में हम निकाल दिए बोन और रेडिएट कर दिए. लेकिन इसमें लिम्फेडिमा और अगर ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हाथ है फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो आपने ऑपरेट कर दिया, यहाँ पे नहीं मूव कर पा रहा है फॉर सम रीज़न, तो आपका यहाँ पे चेस्ट भी आ रहा है, आपका रेडिएशन फुल डोज नहीं दे सकते ड्यू टू सम रीज़न. तो आप वो बोन निकाले, रेडिएट किया, फुल डोज दिया, वापस इम्प्लांट कर दिया. नहीं, वो सेक्शन निकाल मतलब वो सेक्शन ट्यूमर एक्चुअली मैम, ट्यूमर वाली जो साइट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ट्यूमर है, उनने वो उतना एरिया पूरा निकाल दिया बोन का, उसको निकाल के नहीं निकाल दिया एम्प्यूटेड एक्सरसाइज निकाल के उसको दे टेक इट टू द नेक्स्ट चेम्बर. मैम वो नेलिंग तो वैसे भी करते हैं, तो नेलिंग जब वो कर ही रहे हैं तो यहाँ वो क्या हो गया, स्टेराइल कर दिया पूरा उस साइड को विद द रेडिएशन, फुल डोज ऑफ रेडिएशन. तो वो सेल, ट्यूमर सेल किल हो जाते हैं, अपना वो रिकवर करता रहेगा. नेलिंग और वो है में जो ऑर्थोपेडिक का काम है वो अपना कर देते हैं. सो एक चीज़ रहती है कि रेडिएशन जहाँ है वहाँ से दूर हो जाओ, हमें रेडिएशन ना लग जाए. सो BARC एक अथॉरिटी है हु डील्स विद सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ एनी प्लेस वेयर रेडिएशन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल. इस तरह का एक मेज़ रहता है, ये कंक्रीट की वॉल है जो ग्रे कलर की आपको दिख रही है, और बीच में ये मशीन है. सो ये वॉल एक्चुअली शील्डिंग का काम करती है. ये जब बिल्डिंग आप बनवाते हैं, अगर ये अप्रूव नहीं हुई तो ये पूरी वेस्ट है. इसमें बहुत बंकर इसको बोलते हैं, इसमें बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ मनी लगता है. एंड अगर उस कंस्ट्रक्शन वाले ने सही नहीं बनाई है और BARC ने रिजेक्ट कर दी तो ये यूज़लेस हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी. सो रेडिएशन का वी वर टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल फॉर्म्स. सो कन्वेंशनल एक्चुअली ये हैं कि बॉक्स फील्ड, जो कोबाल्ट वाला ईरा था जिसमें बॉक्स फील्ड से हम ट्रीट करते थे. ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये शील्ड हो जाती थी. दे आर लाइंस जिधर हमें नहीं रेडिएशन देना है. फिर आया 3D CRT वाला एरा, जहाँ हमने वो जो ब्लॉक्स लगाते थे शील्ड करने के लिए, रेडिएशन रोकने के लिए, उसकी जगह ये प्लेट्स आ गई हैं, MLCs जिन्हें बोलते हैं, मल्टी लीफ कॉलीमेटर, जो कैसेट जैसी दिखती हैं अगर ऊपर से देखें. सो ये क्या करती है, शील्ड कर देती हैं. ये एक्चुअली शील्ड कर दी और सिर्फ इतना एरिया जहाँ हमें रेडिएशन देना बस उतना मिलेगा. ये क्लोज होगा विंडो, इधर रेडिएशन बचाएगा, इधर रेडिएशन बचाएगा, यहाँ हमें देना, हमने यहाँ दे दिया रेडिएशन. ऐसे ही ये 3D CRT जैसे हम बोलते हैं, फिर फॉर्मल रेडियोथेरेपी, तो आपने यहाँ से बीम पास की, यहाँ से बीम पास की, यहाँ से बीम पास की, इतना एरिया रेडिएट कर दिया. IMRT का है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन, जहाँ हमने इंटेंसिटी को चेंज किया. इसमें दूसरी बीम इंटेंसिटी ली, इधर दूसरी बीम ली, इधर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे मॉड्यूलेट किए कि जिस एरिया में हमें देना सिर्फ इसमें. अगर आप देख सकते हैं ये बॉक्स जैसा आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जाती है, तो ये कट हो जाता है इस वाइट फॉर्म में IMRT में. ऐसे ये एक्सियल सेक्शन है, ओरल कैविटी, इसमें ये डोज कलर वॉश इसे बोलते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कितना डोज जा रहा है ट्यूमर में व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर रेडिएशन, और चेक करते हैं कि हमारे जो ट्यूमर साइट जिधर हमें रेडिएशन देना है वो मिस तो नहीं हो रहा है. ऐसे ही रेडिएशन का एक और फॉर्म है इन्वॉल्व्ड साइट रेडिएशन. जैसे लिम्फोमा में पहले मेंटल फील्ड एक होती थी जिसमें हम पूरा ये नेक एरिया और पूरा लिम्फेटिक चैनल को पूरा रेडिएट कर देते थे. अब वो क्या करती हैं, उन्होंने सिर्फ द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इसमें काम आता है हमारा प्री ट्रीटमेंट रेडिएशन का, इमेजिंग का. उससे हमें पता है कि पहले डिजीज़ कहाँ थी प्राइमरी और अब कहाँ पे है. मतलब पेशेंट ने प्री ट्रीटमेंट उसका यहाँ पे नोट्स थे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हाईलाइट कर रखे, पोस्ट ट्रीटमेंट डिसअपियर हो गई क्योंकि वो डिजॉल्व हो गई, अब नहीं दिख रही, पर हमें रेडिएशन एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट देना है. तो हम क्या कहते हैं, जो
जो प्री ऑप हमारी इमेजिंग होती है उसको फ्यूज़ करते हैं करंट सीटी स्कैन से, और हम उस पर मार्क कर देते हैं कि पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, और हम उस एरिया को प्लान कर देते हैं रेडिएशन के लिए। तो हमारा ट्यूमर मिस भी नहीं होता और हम उस एरिया को प्रॉपरली रेडिएट कर पाते हैं। सो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिखा है। ये दीज आर द मेथड्स हाउ वी रिड्यूस द सेटअप एरर। सेटअप एरर होता है कि जैसे पेशेंट आज इधर लेट गया, थोड़ा सा इधर लेट गया, परसों इधर लेट गया, तो वो चीज़ हम मिनिमाइज़ करने की रेडिएशन डोज हमारे ट्यूमर को ही लगे। सो इमेजिंग मोडालिटीज़ रहती हैं हमारे न्यूअर टेक्निक्स में, जिसमें जैसे अब ये ब्लर आपको दिख रहा है फर्स्ट इमेज में ऊपर और नीचे दोनों, तो हम क्या करते हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं टू अलाइन विद दी सीटी जिस पे हमने प्लानिंग की है, जिस पे पेशेंट का एक्चुअल ट्रीटमेंट है। तो काउच क्या है वो उस हिसाब से शिफ्ट हो जाता है, अप डाउन साइड लेफ़्ट राइट, वो उस हिसाब से शिफ्ट हो जाता है, एंड तब हम प्रॉपर डोज इसमें डिलीवर कर पाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली वी मैट टेक्निक। जैसे हेल्सियन एक है, लोग बोलते हैं हम वी मैट कराएंगे, वी मैट कराइए, अच्छा है नाइस, वो वी मैट ऐसे ही दिखता है चक्री जैसा। सो दिस इज़ टू हाफ आप इसको बोलते हैं, एक गैंट्री ऐसे घूम गई और फिर एक गैंट्री ऐसे घूम गई, वही गैंट्री ऐसे आ गई और फिर यहाँ से कट नेक्स्ट। तो इस तरह से इस एरिया को देंगे, बट इसका ड्रॉबैक और एडवांटेज दोनों है। ड्रॉबैक ये कि मल्टीपल लो डोज रीजन्स आपने क्रिएट कर दिए, जो चीज़ आप 1 या 2 फील्ड से कर सकते थे। एडवांटेज ये है कि जल्दी ट्रीट हो जाता है पेशेंट। हर किसी को कैंसर नहीं हो जाएगा कि अगर लो डोज से लग गया तो हो ही गई, बट पेशेंट जल्दी ट्रीट हो जाए। अरे वहाँ तो 2 मिनट में हो जाता, क्यों हो जाता? वी मैट टेक्निक से कराया है। तो आपका हेल्सियन में चक्री कटती है, तुरंत ट्रीट हो जाएगा। और जो आपका लीनियर एक्सेलरेटर या वेरिएंट की हो चाहे इलेक्ट्रा की हो, वो दोनों में ये फीचर ऑलरेडी होता है। ये फीचर उसमें ऑलरेडी रहता है। आप IMRT से भी कर सकते हो, उसमें 3D CRT भी कर सकते हो, उसमें IGRT भी कर सकते हो, उसमें VMAT भी कर सकते हो, लेकिन हेल्सियन में सिर्फ VMAT ही कर सकते हैं। फिर ये एक लंग फील्ड है। लंग मेलिग्नेंसीज में पेशेंट ब्रीथ कर रहे हैं, ट्यूमर साइट ऊपर नीचे होती है। सो पेशेंट को क्या कहते हैं, दिस टेक्निक डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड टेक्निक। तो पेशेंट को प्रैक्टिस कराई जाती है रूम में, जो जहाँ रेडिएशन देते हैं उसमें मल्टीपल कैमरास डिफरेंट एंगल पे लगे होते हैं विद डिटेक्टर्स, तो ब्रीदिंग मूवमेंट्स डिटेक्ट करते हैं। फॉरेन में इस चीज़ को ट्रेन किया जाता है पेशेंट्स को, क्योंकि वहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, दे हैव टू ट्रीट। तो वहाँ पे पेशेंट ट्रेन करता है, अपना प्रॉपर टाइम लेके फिर उसको ले लिया जाता है ऑन द काउच। तो ये अब उनका ब्रीदिंग पैटर्न है। तो जब वो फील्ड में आता है, मतलब ब्रीथ के यहाँ आया तभी वो फायर करेगा रेडिएशन, उससे पहले वो रेडिएशन नहीं देगा नॉर्मल ब्रीथिंग में, वो ट्रेन करके करते हैं। दूसरा, जैसे ये मूवमेंट आपको दिख रहा है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स में आपको वो कहीं गायब हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्ली में तो ऑपरेट कर लिए पेशेंट्स जैसे जो इनऑपरेबल हैं फॉर सम रीज़न, उनमें ऐसे ब्रेन मेलिग्नेंसीज रहती हैं। तो आप ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे ये हिप्पोकैम्पस है, ये वन ऑफ आवर पेशेंट्स ही है, उसमें आपने कंटूर किया एक बनाना शेप स्ट्रक्चर। ऐसे अगर हम सैजिटल सेक्शन में देखें, यहाँ पे ये हिप्पोकैम्पस है। सो ये पूरा हम इसमें कंटूर कर देते हैं, सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स इसमें कंटूर कर देते हैं। फिर हम ये डिलीनिएट करते हैं इस सबको। ये हमारा एक्चुअली ट्यूमर साइट है विच इज़ हम रेडिएट करने के लिए, या एक पेपर से हमने लिया इमेजेस के लिए। सो ये हमने ऑप्टिक नर्व लेंस सब कंट्रोल कर दिया, नर्व हो गया, आइडियल हो गया, ये आपका ट्यूमर है, ब्रेन स्टेम बना दिया। अब क्या है, जब हम इसका प्लान कर रहे हैं, हमने सारे सुपीरियर सेक्शन से देख लिया कि कहाँ पे पूरा एरिया हमने उसको ड्रॉ कर दिया, विच इज़ कॉल्ड कंटूरिंग, थैंक यू, विच इज़ कॉल्ड कंटूरिंग। सो इसको हमने कंटूर किया, उसके बाद हम एक मार्जिन देते हैं विच इज़ द पॉसिबल साइट ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेट्स, जिसे हम CTV कहते हैं हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में। तो वो होता है कि जितना सराउंडिंग एरिया विच इंक्लूड्स एडिमा इन अ ब्रेन, अगर हमारा बॉडी का कोई और स्ट्रक्चर है तो उसके अराउंड, जैसे हेड एंड नेक में हम 10 mm की मार्जिन लेते हैं। समटाइम्स वी टेक द होल ऑफ द एरिया, क्योंकि हमें पता है कि टंग में तो पूरा स्प्रेड हो सकता है, तो वो पूरा उधर कैविटी चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेटअप एरर के लिए जो डार्क ब्लू आपको लाइन दिख रही है वो भी लेते हैं, विच इज़ प्लानिंग। यानी पेशेंट अगर कभी इधर मूव किया, इधर मूव किया, हम शिफ्ट तो कर दिए, लेकिन जो माइनर चेंजेस होते हैं तो उसका हमारा ट्यूमर मिस ना हो रेडिएशन से, वो सारा चीज़ लेके आना है। ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम, CTV विच इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड की साइड्स, एंड प्लानिंग सेटअप एरर के लिए PTV।
ये सब लेके हम इसको कंटूर इस तरह से कर देते हैं. So zoom image में if it is appreciable, there is this dark blue, then there is this light blue and then very dark. तो ये हम पूरा एरिया रेडिएट करने के लिए प्लान कर दिए होते हैं. So इसमें दिख क्यों नहीं रहा? नहीं. So there is this photon therapy and then there is this proton. जो proton only in Apollo चेन्नई में है, वहाँ पे ही प्रोटॉन थेरेपी होती है. अभी तक यही सेंटर है जहाँ पे कराते हैं, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली. एक सिटिंग उनकी लैक्स में जाती है. तो एडवांटेजेस है, बट ओनली इन अर्ली लीजन्स या वेरी जैसे 2 mm के अंदर के हैं. अगर आपका सेलर टर्सिका में पिट्यूटरी के हैं प्रेगनेंसीज, उधर आपको देखना है कि भाई एडिशनल स्ट्रक्चर्स को बचाना, उसमें चला जाता है. तो दोज एट अफोर्ड दे गो देयर एंड दे गेट रेडिएटेड. सो एडवांटेज क्या है? व्हाई इज इट हाइड? जो नॉर्मल हम लोग रेडिएशन दे रहे हैं जो लीनियर एक्सेलरेटर से, उसमें आप ये देख रहे हैं पूरा एरिया रेडिएट हो रहा है. ट्यूमर तो हो रहा है बट लेस डोज इधर भी जा रही है. हार्मफुल नहीं है, जाती है, हमने उसका स्टडी कर रखा है कितना एक्सेप्टेबल है, पर जाती है. ये चीज़ नहीं रहती है ना प्रोटॉन थेरेपी. उसमें ब्रैग पीक वाली चीज़ होता है. ब्रैग पीक का मतलब ये होता है कि वो सारी डोज जाके साइड जहाँ हमें रेडिएशन देना है बस वहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेटर से आप देते हैं, तो उससे क्या पूरा ये पूरी फील्ड रेडिएट हो रही है. ठीक है, वो हमारा उसमें क्राइटेरिया रहता है चेक करने का कि जहाँ ट्यूमर दे रहे हैं और ये एक्सेप्टेबल डोज है, यानी ये सब कैलकुलेट किया जाता है. उन्होंने कहा नहीं, हमें ये भी नहीं देना, हमें चाहिए जहाँ ट्यूमर है बस वहीं जाए, ये फालतू में लंग को ना रेडिएट करें. तो उसमें आता है आपका प्रोटॉन थेरेपी. उसमें सारी डोज इसी एरिया में डंप होगी जहाँ पे हमें डोज एक्चुअल में देना है. देयर इज नो एग्जिट डोज, उसे एग्जिट डोज बोलते हैं, विच इज़ पूरा रेडिएट जो कर रहा है. तो सिर्फ जितना एरिया हमें चाहिए बस उतना ही रेडिएट करेगा. There is something called stereotactic radiosurgery. This was developed by Lars Lexell 1949 में to treat small targets in the brain not amenable to conventional surgery. Eloquent areas होते हैं in the brain, जो स्पीच, जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स के लिए हैं. अब डिजीज़ वहीं जाके बैठ गई, उसको नहीं पता, क्योंकि सर्जन कांट ऑपरेट इट, और हम रेडिएशन डोज अंडर डोज करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो उस चक्कर में हम फिर एड्रेस करते हैं रेडियोटैक्टिक सीरियस सर्जरी के लिए. सो दिस इज़ बेसिकली आज जी के क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस में हमारे ये इमेज आ जाती है लार्स लेक्सल जी की. सो ही डेवलप्ड गामा नाइफ फॉर ट्रीटिंग इंट्राक्रेनियल लीजन्स. सो इफ यू कैन सी दिस स्कल, ये फ्रेम में रहता है, दे वर होल इन इट, और 1 या 2 सिटिंग में ही वो डोज फुल डोज दे दी जाती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियो सर्जरी, क्योंकि वो पूरा एब्लेट कर देती है ट्यूमर को इन 1 or 2 settings only. So these are some machines. This is for Varian linear accelerator. This is of Electa Versa HD जो एम्स में है. साइबर नाइफ ये दिल्ली में है, अभी गोरखपुर में तो नहीं है बिकॉज आपके न्यूरो पेशेंट्स में मेनली चाहिए. सो ब्रेकी थेरेपी है ना, कॉन्टैक्ट थेरेपी. सो डिफरेंट तरीके हैं इसके. देयर इज इम्प्लांट, देयर इज इंटरस्टिशियल, इंट्राकैविटरी. इम्प्लांट बेस में गोल्ड सीड्स हैं, इंट्राल्यूमिनल. सो ये एक्चुअली इंट्राकैविटरी वाला का है, म्यूपिट इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, विच इज मार्टिनीज यूनिवर्सल पेरिनियल इंटरस्टिशियल टेम्पलेट है. ये इंसर्ट कर देते हैं हम लोग इन द वजाइना, जो सर्विक्स केसेस में यूज़ होता है मोस्टली, बट इट इज़ नॉट कॉमनली. मोस्टली यूज़ होता है बट नॉट कॉमनली. सर्विक्स के अलावा प्रोस्टेट मैलिग्नेंसीज में भी म्यूपिट का इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज़ वन ऑफ आवर पेशेंट्स who was treated with म्यूपिट. म्यूपिट is not commonly done. Then there is this interstitial intracavitary lesion. This is the instrument which is commonly used. जैसे cervix वाले cases हैं, post EBRT external beam radiation के बाद हम internal भी देते हैं which is intracavitary. तो ये पूरा हम लोग insert करते हैं. सेट है, कैसे करते हैं वो वीडियो में इसमें मिला नहीं मेरे को, recorded था बट. So that is inserted and then the dose is actually given. We can see ये insert कर दिया है, image ली जाती है and dose calculation is done. और वो पूरा एरिया रेडिएट किया जाता है. Why? Because to address the paraortic, the pelvic lymph nodes, the loco-regional जो obturator है, इन सबको रेडिएशन डोज पहुंचानी रहती है, जो हम एक्सटर्नल से नहीं दे सकते बिकॉज हमारा बाउल की टॉक्सिसिटी होने लगती है. पेशेंट और ब्लैडर आपका है, पोस्टीरियरली आपका रेक्टम है, तो डोज हमें उधर रिस्ट्रिक्ट करके रखना रहता है. इसलिए हाफ जो 50 इन 25 फ्रैक्शंस होती हैं वो हम एक्सटर्नली दे देते हैं और इंटरनली रिमेनिंग 30 हम दे देते हैं.
grave with the help of intracavity. इसे फ्लेचर सूट बोलते हैं. सो दिस इज़ द इम्प्लांट वन. गोल्ड सीड्स, ये प्रोस्टेट के केस में इफ इट इज़ अप्रिशिएबल ये सीड्स इम्प्लांट कर दिए रहते हैं. सो इससे दो कुछ, एक तो लोकल आपको ने रेडिएशन दे दिया, दूसरा जब हम इमेजिंग ले रहे होते हैं तो इससे हम चेक कर लेते हैं कि लोकेशन पे है या नहीं डिजीज़. So अभी तक we were knowing that radiation is only given for malignant cases. There are certain cases only names have been told. Benign cases जहाँ पे we are giving radiation as well, like in brain meningioma, pituitary adenoma, craniopharyngioma, head and neck में chordoma, paraganglioma, glomus tumor, vestibular schwannoma, or all these cases when I was doing PG we treated also. That time we didn't realize, but when स्टडिंग अगेन रियलाइजिंग अच्छा इसको भी ट्रीट कर दिया. फिर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, सैलोरिया, आई एंड ऑर्बिट मेटेरिजियम, कोरोइडल हेमेंजियोमा है, ग्रेव्स ऑफ्थैल्मोपैथी. स्किन डिजीजेज हैं, ड्यूप्यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर, कीलॉइड्स में दे दिया, सोरियासिस में दिया. ऑफ कोर्स आफ्टर फर्स्ट सेकंड जो मेन स्टे ट्रीटमेंट है उसको रिसीव करने के बाद व्हेन देयर इज रिकरेंस उन केसेस में है, नॉट इन ऑल केसेस. So thank you for your kind attention. So any question? Question वो डॉक्टर बबीता ने अभी पूछा था, इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी हड्डी वाले. So there are many ways of doing this. जो काट के निकाल करके स्टरलाइज करके बोन को फिर से रीइम्प्लांट कर देते हैं, ये एक तरीका है. दूसरे में ये है कि अगर ओटी में ही रेडियोथेरेपी यूनिट रहती है वहीं ऑपरेट किया जाता है, उसी को एक्सपोज करके फुल डोज डाल देते हैं. ये और तीसरी चीज़ है जो इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी की है, जैसे ब्रेन में हुआ तो दे जस्ट इम्प्लांट सीड्स इनसाइड द ओटी. लंग्स मैलिग्नेंसी में हुआ तो लंग में भी वो इम्प्लांट करते हैं सीड्स ड्यूरिंग ऑपरेशन इन ओटी, जस्ट टू अवॉइड द एक्सटर्नल बीम रेडिएशन. एंड पेरिटोनियल आजकल तो बहुत सारा चल रहा है, वो जो पेरिटोनियल रेडिएशन के लिए आफ्टर ऑपरेशन एंड द हाईपैक ट्रीटमेंट. हाईपैक में तो मेडिसिन डालते हैं पर उसमें एक्सपोज भी करते हैं. The whole peritoneum is being exposed to the external radiation. So this is nowadays latest thing which is done. So both the way it can be done. It can be excised and reimplant, or it can be irradiated de novo. Thank you. Any other question? Yes. Dr. Diksha, you said so many things about the radiotherapy. There are some diseases very common in our society, like Parkinsonian disease, and in the you say the so many diseases like that. So there should be some talk on that, because we come across a lot of patients about Parkinson's, peyronie disease, the young female male come, with the peyronie disease, the penis. So if it is the targeted radiotherapy can be given, this is a wonderful treatment for that. We come across a lot of cases. So do you think, Dr. A.K. Chaturvedi, sir, can you give another talk on these common diseases? We can make it out. Sure. We'll plan a lecture on that separately. Here also another thing is neutron therapy, proton therapy. Now it has come up very well. So what is the difference between the simple linear accelerator and protons? This is known as in radiotherapy, Bragg's peak is there. When a proton travels through the tissue, it breaks down at particular depth. And it deposits energy at that particular level, and there it finishes. So there is no exit dose as exit dose. Here you can see it is conforming. It's not so दूसरी वाली slide है तुम्हारी उसमें. So exit dose is not there. Entry dose is there, but that is minimal, and exit dose is not there. So the energy deposited in the tissue is very precise. So it is very good for the smaller lesion. And here you see, here this is treated by photons and this is by protons. Photon, something else. Proton is different. All the energy they disintegrate, they have got multiple source of energy. Here they will adjust the depth at what particular level they have to
break the things. So this is very much conformal. Beyond this, there is no energy deposited. So it is very precise type of treatment, but it is very expensive. And nowadays it is in Chennai. Recently they are going to put in TMH also, but it will take time. Radio surgery, it is in Bangalore, Bombay, and Delhi now they have started. So that is for radio surgery. वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर. जैसे ब्रैक पीक की बात हुई है, सो ब्रैक पीक आपका एक आ रहा है, सो उसको ही हम स्प्रेड आउट कर देते हैं, स्प्रेड ऑफ ब्रैक पीक्स, SOBP हम लोग उसको बोलते हैं. सो उसमें ये होता है कि ये पूरा एरिया हमारा जिस डेप्थ पे चाहिए, मतलब हम लोग उसमें डेप्थ के साथ गेम खेलते हैं, सो एज टू एडजस्ट कि इस डेप्थ पे जाके डोज डिपॉजिट करो, फिर इतनी हल्की डेप्थ है इस पे जाके डिपॉजिट करो. सो इसलिए वो इतना कन्फॉर्मल आ रहा है, कन्फॉर्मल इन द सेंस मतलब शेप लेके आ रहा है. और दूसरा लीनियर एक्सीलेटर हाई बीम एक्सरेज हैं बेसिकली. सो अगर आप कभी सुन लें किसी के मुँह से कि अरे ये तो एक्सरे से ट्रीट कर रहे हैं, एक्सरे से ही ट्रीट कर रहे हैं, बट दे आर हाई एनर्जी डोज ऑफ एक्सरे, तो हाई बीम है, सो वो ट्रीट इंटेंट थेरेप्यूटिक रहती है, इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक वन. सो दैट इज़ द थिंग. किलो वोल्टेज इन एक्सरे एंड मेगा वोल्टेज इन. इससे लगता है जो रेडियोथेरेपी जहाँ होता है हर लोग शिल्डेड होता है बिल्कुल. Yes, sir. हर तरफ से Yes, sir. रेडिएशन कहीं हो ना पाए बिकॉज वेरी हाई डोज ऑफ द रेडिएशन गिवन. सो एवरीबॉडी हैज टू बी सेफ. सर ये इसमें मेज़ दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रही. This is two barriers are there. One is this barrier where the source is lying. Around this platinum iridium alloy का एक compact heavy bomb होता है जिसको रखा होता है. इसके अंदर सोर्स सिर्फ इतना होता है. कॉलिमेट करते हैं. या ये कॉलिमेटर है. एंड फर्स्ट सीलिंग तो यही होती है. दूसरा फिर ये करीब करीब 1.5 से लेकर के 2.5 मीटर तक का थिक कंक्रीट वॉल. उसमें भी मैक्सिमम जो M3 कंपैक्शन होता है, अपन लोग नॉर्मली M1 M2 पर ही बिल्डिंग बना लेते हैं, वो M3 कंपैक्शन पे जाते हैं जिसमें सीमेंट, बालू और गिट्टी का रेशो 1:1 के करीब होता है. तो उससे ये रुकती है.